سب سے پہلے تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ اس کام کے لیے الحمدللہ آپ لوگ جمع ہوئے اور اس میں کافی محنت کی. بہت مبارکباد ہے آپ کو. حامد و مصلی علی مغاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ناظرین، سامعین، زیادہ وقت نہ لے کر کے میں آپ لوگوں کو بس اتنا کہہ دوں کہ اس امت کا وجود کا جو مقصد ہے وہ دعوت دین ہے. اصل کامیابی کہاں ہے؟ دعوت دین ہے. کیونکہ سورہ آل عمران میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم میں سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تأمرون بالمعروف، اور اچھائی اور بھلائی کا حکم دے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پہ تین باتیں ہیں. تو الحمدللہ جب ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے فرزند، اس کے شہسوار، اس کے ذمہ داران جب اس میدان میں اترتے ہیں اپنے قوم و ملت کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو جب پیش کرتے ہیں، تو یہ خیر امہ، سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین اور عمدہ لوگ ہیں. اور اسی تعلق سے اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے، کیا کرے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف دعوت دے. بھلائی سے مراد قرآن و حدیث، توحید کی دعوت ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت کی دعوت ہے. اسی طریقے سے آگے فرمایا: نہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، شرک و بدعات سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہ وہی لوگ کیا کامیاب ہیں. تو کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ دعوت دین ہے. یہ پہلی چیز نوٹ رکھیں. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے سورۃ العصر. ہم اور آپ چھوٹی سی سورۃ العصر تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ تفسیر نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ہیں، وہ صرف یوں پڑھ کے فضیلت کے طور پر، تبرکن کے طور پر وہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یقیناً زمانے کی قسم لوگ کیا ہے؟ خسارے میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لے آئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے. دیکھتے قرآن میں جب آپ تلاوت کریں گے جا بجا بہت ساری جگہوں میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب ہم ایمان لے آتے ہیں اللہ اور رسول پر تو صرف اور صرف ایمان دکھتا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے عمل نہیں دکھتا. آج امت محمدیہ خاص طور سے اس میں چاہے جماعت اہل حدیث ہو یا بندی ہو، کسی بھی مسلک ہو، سب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے وہ کام کر رہے. بس کام نہیں ہو رہا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
जो नेकी वाला काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। अगर कोई काम कर भी रहे किताब व सुन्नत की रोशनी में तो तानो तशनी और लान तान के बोझार लगाते हैं। इसी तरीके से फिर कहते हैं वतवासौ बिलहक़ वतवा, आप जानते हैं जब वालिदैन या माँ बाप जब क्या कहते हैं इंतकाल से पहले अपने बाल बच्चों के लिए वसीयत करते हैं, वसीयत, तो वतवासौ बिलहक़, जो हक़ की क्या करें, वसीयत करें, जो हक़ की तरफ रहनुमाई करें, हक़ से मुराद कुरान व हदीस तौहीद की तरफ बुलाएं, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तरकीब करें। नाज़रीन, पहली चीज़ जो है उम्मत की कामयाबी का असल राज क्या है, दावत दीन है। उसी तरह दूसरी आयत जो सूरह अल-असर तिलावत की गई उसमें दूसरी जो कामयाबी बताई गई वतवासौ बिल-हक़, जो हक़ की तलक़ीन है, हक़ की दावत देते दूसरी कामयाबी है। अब तीसरी कामयाबी क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अन-नहल में इरशाद फरमाते हैं वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, यकीनन हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। हर उम्मत, जितनी भी उम्मत आई है, जितने भी कौमें आई हैं, हर कौम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल बनाकर भेजा। और फिर कह रहे अनिअ्बुदुल्लाह, उन लोगों का मिशन क्या था कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या करें, इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी चीज़ का जिक्र किया तो इबादत। आप सूरह ज़ारियात की आयत पढ़ते हैं इन्नी खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यहाँ पे खाने पीने या दुनिया में आयज मौज मस्ती करने की बात नहीं है, पहले इबादत की बात कह रही है, इबादत की बात कही। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया बनाने से पहले, इंसानों को पैदा करने से पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की किस्मत में लिख दिया कि इसकी किस्मत में क्या होने वाला है, उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख दिया है। चाहे आप काम करें या ना भी करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंशाअल्लाह रोज़ी मिली जाएगी। अगर आप एक जिंदा मिसाल लेंगे हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो मस्जिद के किनारे में बैठती और एक एक ऐसे फल उनको दिए जाते जो लोग देखकर हैरान रह जाते, क्यों गैर मौसम में वो फल है, जो मौसमी फल है वो तो है ही, लेकिन मौसम के अलावा दूसरे फल उसमें मिल जा रहे हैं। तो खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क का मालिक है, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले बात किया अनिअ्बुदुल्लाह, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। तो इबादत का ताल्लुक कहाँ से है, तौहीद है। उसके बाद वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत से बचे। आज हम में से बहुत सारे फ़िरक़े और बहुत सारे मज़हब हैं, लेकिन उन्हीं में से एक जमात ऐसी है जो ताग़ूत का मीनिंग निकालते हैं। वो क्या है, बोलते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नऊज़ बिल्लाह। देखते हैं, इसीलिए आप जमात अहले हदीस के उलमाए कराम की ज़ुबान से आप एक लफ्ज़ सुनेंगे, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सलफ़े सालिहीन के मफ़हूम पर समझने वाला बनाया या उस पर चलने वाला बनाया, सलफ़े सालिहीन के फ़हम पर चलने वाला बनाया। फ़हम किसको कहते हैं, सलफ़े सालिहीन ने जो फ़हम, जो कुरान मजीद के जो अल्फाज कठिन अल्फाज हैं, उसके जो माने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सिखाया, सहाबा किराम से तबा ताबीन ने जो सीखा उसी हिसाब से हमें चलना है। हमें किसी भी पार्टी को हमें इसमें मुलव्विस नहीं करना है। वज्तनिबुत ताग़ूत, ताग़ूत का माना ये होता है कि जो अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करे उससे हमें क्या करना है, बचना है। अब इसमें मोदी गवर्नमेंट नहीं लाना है, अब इसका मफहूम क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो ऐसा तबका है जिनकी सोच ये है कि हमें क्या करना है, हुकूमत लानी है। इसी हुकूमत के चक्कर में गवर्नमेंट लेकर आते हैं, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो वो गवर्नमेंट लेकर आते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि ये जो चार चीज़ें बताई गई हैं, एक है कि दावत दीन की जो दावत का असल कामयाबी का राज क्या है, दावत दीन है। एक चीज़, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, वतवासौ बिल-हक़, हक़ की तलकीन करनी है। तीसरी चीज़ क्या है, उसके बाद अंबियाई मिशन पर हमें दावत का काम करना है। हाँ, जिस हिसाब से रसूलों और नबियों को अल्लाह ने भेजा है,
जिस तरह काम उन्होंने किया है, तौहीद की बात कही है, उस तौहीद के हिसाब से हमें काम करना है। 3 चीज़ हो गई। और चौथी जो चीज़ है वो है, आप जानते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सूरह फुस्सिलत के आयत नंबर, सूरह फुस्सिलत है, इसमें कितनी ही अच्छी बात है, अज़का कलाम, यानी कि सबसे उम्दा बात, मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, बड़ी प्यार से, खुशगुफ्तारी से, बड़े अच्छे अखलाक से अल्लाह की तरफ बुलाए, वअमिल सालिहन, और नेक अमल करे, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहे कि मैं रसूल, अल्लाह रसूल के फरमाबरदार में से हो गया। ये कामयाबी है दावत दीन के, ये कामयाबी का असल राज है। तो चौथी चीज़ ये बयान की गई है, यही असल दावत दीन की कामयाबी का असल राज है। दोस्तों, हम जो आप लोगों को अभी तक सुबह से लेकर के शाम तक, जो अभी असर तक हमने जो देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार एमिन और उसके बाद साउथ में आना हुआ, लेकिन इस तरीके से काम हम फील्ड वर्क किए हैं, हम भी फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह का काम बहुत ही मौसर और ये अच्छा पैगाम देने वाला काम है। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोग आलिम उलमा के अंडर में रह करके, उनकी निगरानी में रह करके आप लोग इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल जिनकी सरकार है या जिनकी अथॉरिटी है, उन अथॉरिटी से इजाज़त ले करके आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मामूली काम नहीं है, हल्का फुल्का काम नहीं है। ये जहन में याद रखिए, जहन में रखिए कि दावत दीन में बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, लेकिन उसे हमें तहज्जुद में नमाज पढ़कर हल करना है इंशाअल्लाह। हम जिस बस्ती में जाएं, जिस जगह पे जाएं, तो हम क्या करें, तहज्जुद का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह एहतमाम करेंगे, खूब दुआएं करेंगे कि हम जिस बस्ती में जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती वालों के दिल को खोल दे। क्योंकि आप जानते हैं, एकदम साधारण मिसाल है, एकदम साधारण, आप जानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मूसा ने दुआ की थी, और उसी दुआ की बदौलत हज़रत मूसा ने फ़िरौन के सामने जो है दावत की, वक़ौलन लय्यिना, नरम गुफ्तगू के ज़रिए से फ़िरौन को दावत दी। फ़िरौन इस ज़माने में वो कोई नहीं है, आपने भी नहीं देखा है, कोई फ़िरौन है कि नहीं, हमने भी नहीं देखा है। वो फ़िरौन जो अपने अना रब्बुकुम अला कहता था, मैं तुम सब का रब हूँ। तो बहरहाल इसमें आप लोग जो भी काम अंजाम दे रहे हैं, आप लोग कोई भी काम करें, आलिम उलमा की निगरानी में करें और सलाह मशवरा से करें। वशाविरहुम फिल अम्र, कोई भी मामला हो उनसे क्या करें, मशवरा तलब करें। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन काम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इस अमाल को कबूल फरमाए, और हमारी नीयत में जो कुछ भी अल्लाह खालिस नीयत को कबूल फरमाए, और दुनिया की गरजी, पोस्ट, इसी तरीके से सदर, इसी तरीके से किसी भी क्या बोलते हैं कुर्सी के लालच ना हो। हम सिर्फ और सिर्फ दावत का काम करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दावत का काम करें। इसमें फंड भी नहीं दिया जाता, ना एक पैसा दिया जाता है, ना कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करें, अल्लाह के लिए, ताकि ये अमाल कब कबूल हो, हमारे मरने के बाद जन्नत के दाखिल होने के सबब बन सके ये अमाल। तो इंशाअल्लाह नीयत के साथ इंशाअल्लाह काम करेंगे, और तहज्जुद का एहतमाम करेंगे, 5 वक्त का एहतमाम करेंगे। अगर हमें दीन अगर समझ में नहीं आ रहा, कुरान और हदीस अगर समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उलमा की रहनुमाई में हम क्या करेंगे, कोर्स करेंगे, और कोर्स में सीखेंगे, इस तरह दीन को सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने से ज़्यादा अमल करने वाले बनाए, सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।